Hello students, welcome all of you to my channel CKS Physics, Learn Physics with Imagination. So now I am going to start my video lecture number 19 for the chapter Semiconductor Devices. So dear student, in previous class we already discussed about rectifier circuit. Rectifier में half wave and full wave rectifier circuit पढ़िले. And by using half wave and full wave rectifier circuit, हमें से DC AC to DC को convert करें. And we get pulsating DC. And we need to filter it so that we create a filter circuit by using capacitor and inductor. इंडक्टर को सीरीज रे लगे के मोटे फिल्टर सर्किट तैयार करले एंड कैपेसिटर को पैरेलल रे लगे मोटे फिल्टर सर्किट तैयार करले. देन बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट वी गेट स्मूथ डीसी फ्रॉम एसी. ओके, सो एसी रो डीसी को कन्वर्ट कर देबे. सो जते बेले मोटे रेक्टिफायर एसी को डीसी कन्वर्ट करूची जते बेले ता भितर किछि कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप वे आज से कैरेक्टरिस्टिक्स विषय पढिबा बुझियला. सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट efficiency and ripple factor of rectifier. Efficiency and ripple factor of rectifier. Okay, so rectifier is two types, दी प्रकार अछि. गोटे होछि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर. हमें वर्तमान हाफ वेव रो एफिशिएंसी बाहर करिबा एज वेल एज रिपल फैक्टर बाहर करिबा. एंड फुल वेव रेक्टिफायर पई एफिशिएंसी कोन होबो एंड तार रिपल फैक्टर कोन होबो. Okay, so before starting my video I discuss about some points by some terms which concerned with related with जो हमर efficiency and ripple factor. आपको डेरिवेशन कला बेले बा रिपल फैक्टर एंड एफिशिएंसी बाहर कला बेले किछि टर्म हमको जानिया पड़िबो. से सब टर्म विषय में डिस्कशन करिया. देन हाफ वेव फुल वेव बाहर करिया. ओके, ये जो टर्म वर्तमान मु कहबी ये दिजण पय कॉमन रहइबो हाफ वेव एंड फुल वेव पय कॉमन रहइबो. से टर्म से कोन टर्म देखो पहले फर्स्ट टर्म विषय जानि दे देन हमें बाहर करिबा. Then first term is suppose मैं लिखी भी I naught means this is the maximum value of AC or we can say peak value of AC. Okay, गोटे AC alternating current रा peak value को I naught निया जाए. एटा देखो alternating current रे डिटेल सब पढिबो. वर्तमान भाबे जहा पढिबा सब alternating current रे डिटेल रे पढिबो. So here suppose this is an AC signal and here this waves indicates the magnitude of AC varies continuously over time and here the magnitude is 0 and over the time it increases continuously and here is maximum that is I naught and now fall down to 0 and negative maximum that is minus I naught and also increase up to 0 and here increase and create a maximum value that is I naught and here is 0. Continuously a form AC circuit move करूछ AC current move करूछ. So here positive peak value and this is negative peak value, maximum value of alternating current. Okay, so during this period हमें आउट वर्ड पढ़िबा that is IRMS. ये सब डिटेल में हम पढ़िबा alternating current सब. So IRMS means root mean square, root mean square value of AC or we can say virtual value. Okay, root mean square value of AC or virtual value of AC. AC रो गोटे virtual value हमें कहबा RMS which behaves like a DC but not a DC. This is AC and this is virtual value of AC जोटा हम यूज करू छे root mean square value virtual value of AC ऐसा. And another is IDC, we can say magnitude of direct current or DC. IDC, IRMS, I naught, IDC, IRnet and I naught and we can find IAC and another term IAC that is magnitude of alternating current. magnitude of alternating current. ये जो RMS वैल्यू रोज पिले
कोन होची आरएमएस दैट इज वर्चुअल वैल्यू बोल से बुझो आमे जो पल्सेटिंग डीसी पाइथिले कोन पाइथिले पल्सेटिंग डीसी पाइथिले तदरे कोन थिला एसी थिला as well as डीसी थिला होंगे नहीं तदरे एसी थिला as well as डीसी थिला से जो पटे मिक्स्ड है कि पल्सेटिंग डीसी बाटा ताको भी हमें कहि परिबा आरएमएस वैल्यू सो वी कैन राइट इन केस ऑफ आरएमएस वैल्यू वी कैन राइट इन केस ऑफ आरएमएस वैल्यू वी पुट द हियर आरएमएस हमें कहि परिबा मैग्नीट्यूड ऑफ pulsating DC pulsating DC ର magnitude को RMS कहि परबे in case of rectifier okay so here this term is used for derivation of finding the efficiency and ripple factor of half wave rectifier as well as for full wave rectifier so write down this concept I naught maximum value IRMS root mean square value or virtual value and IDC direct current value and ISC magnitude of AC current ऑल्टरनेटिव करंट अच्छा सो इरेज करूची वर्तमान हमें फुल वेव एंड हाफ वेव पई ए समस्तंकर एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर कैलकुलेशन करिबा देखो पहले एफिशिएंसी बाहर करबा को हेले हमको फास्ट जानिबा पड़िबो जे आईडीसी कोन रहइबो हाफ वेव रेक्टिफायर पई सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आईडीसी magnitude of direct current कौन रहेगा according to Ohm's law we know that V equal to IR so that I equal to V by R yes or no so IDC equal to VDC divided by R को R direct current कोड बाहरुची in case of load resistance पूरा finally load resistance हमको direct current मिलुची DC मिलुची so here RL IDC equal to VDC by RL clear and if you write here by using this concept we can write VDC equal to R into VDC equal to केते परिबो IDC into RL clear same concept RL टा multiply हे जिवो if we find the power in DC PDC केतबो P रो फार्मूला में जानि छे ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ि गेस तबो पावर इलेक्ट्रिक पावर रो फार्मूला P equal to VI I square R and here V square by R जे कोनसी फार्मूला तुमे पुट करी पारिबो सो वी पुट सपोज हम दिस फार्मूला पुट करछ I square R and PDC हबो IDC रो स्क्वायर into R here RL and by putting the value of here IDC रो स्क्वायर को हम लिखि परिबा कोन लिखि परिबा ना VDC by RL रो स्क्वायर into RL so finally हम पाए कोन VDC रो स्क्वायर divided by RL रो स्क्वायर into RL so finally भाला केते VDC रो स्क्वायर divided by RL कटला RL so here देखो V square by R फॉर्मूला भी सैटिस्फाई करूची so PDC equal to IDC square into RL माने डायरेक्ट करंट पावर at डायरेक्ट करंट we can write VDC square by RL again ए जो IDC रो फार्मूला में लिखले VDC by RL याकू तमे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर रे आर प्रूफ पढिबो कोन पढिबो आर प्रूफ पढिबो IDC रो पीक वैल्यू सहित रिलेशन अछि सेठी प्रूफ पढिबो बुझेला अल्टरनेटिव करंट चैप्टर तुम भलसे मैं निजे तुमको तार प्रूफ करेबी जे तुमको केमिति मीन वैल्यू सहित कर्मिक वैल्यू रिलेशन आरएमएस वैल्यू सहित पीक वैल्यू रिलेशन कैन फाइंड आउट करबो सो हियर माइंड इट आईडीसी सहित मैक्सिमम वैल्यू जो आई नॉट लिखितले ता सहित ଗୋଟେ रिलेशन अछि हियर दैट इज आई नॉट बाय पाई हमें पीडीसी तक पाइले सो हियर पीडीसी को तक पाइछे ऑलरेडी बट अगेन हमें लिखि परिबा अगेन और करके लिखि परिबा और PDC equal to IDC square into RL IDC square into RL here IDC equal to I naught by pi square into RL so I naught square by pi square into RL this is power in a DC circuit ର पावर बा आउटपुट ର पावर
we can say output रे जो load resistance लागि छि सेठी power केते जनरेट होछि ना maximum current AC सर्किट रो वो AC करंट रो maximum peak value तार स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इनटू RL क्लियर बर्तमान हम फास्ट हाफ वेव रो सब तो डेरिवेशन कर दोछे तापर बेटर हम हम हाफ वेव रो समस्त बाहर करी तापर हम फुल वेव बाहर करी गोटे परे गोटे करबा बेटर हबो सो दैट हम फास्ट हाफ वेव रो सब तो बाहर कला पर हम फुल वेव करबा सो फास्ट फॉर हाफ वेव हम करूछे अच्छा तले हाफ वेव हम कोन बाहर करे बर्तमान पावर बाहर कर देले एटा तले हम कहि परिबे पिले कोन आकू ना एटा होछ आउटपुट पावर एटा पिले कोन आउटपुट जेतु लोड रेजिस्टेंस रो अछि या हम आउटपुट कहि परिबा एंड दिस इज आउटपुट करंट दिस इज आउटपुट वोल्टेज दिस इज आउटपुट पावर दिस इज आल्सो आउटपुट पावर जेते हम वर्तमान डायरेक्ट करंट रे बाहर करे दिस इज आउटपुट ओके वर्तमान देखिए इनपुट आडे आसीबा अगेन नेक्स्ट पॉइंट रे हम लिख परिबा अनदर फार्मूला नेक्स्ट पॉइंट RMS रूट मीन स्क्वायर भी डेरिवेशन अछि ऑलरेडी करेंट चैप्टर इंटीग्रेशन करी कराबो डिटेल ले कराबो सो दैट तमे सेठी इजीली बुझी परिबो बर्तमान एठी केवल मन रखो जे RMS होची रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड दैट इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC रो गोटे वर्चुअल वैल्यू व्हिच बिहेव्स लाइक ए DC बट नॉट ए DC दैट इज पल्सेटिंग DC ओके सो RMS वैल्यू एठी IRMS रो वैल्यू रो पीक वैल्यू से तो कोरिलेशन अछि दैट इज पीक वैल्यू बाय 2 I नॉट बाय 2 सिमिलरली जदी IRMS इक्वल टू I नॉट बाय 2 भाउची हमें VRMS भी बाहर करि परिबा we can find the VRMS that is IRMS into अच्छा मते को रेजिस्टेंस कोन रहइबो एटी सिना लोड रेजिस्टेंस रहि गला आउटपुट रे सेठी को रहइबो ठीक है डायग्राम मन पके दोछि देखो ये होची इनपुट जो हमरा प्राइमरी सर्किट एंड हियर दिस इज आउटपुट सर्किट बा सेकेंडरी सर्किट हियर इज a diode and also here is a diode for full half wave by single diode and here is a load resistance ए टाइप रो थिला तो ताले वर्तमान डी फॉरवर्ड बायस रे करंट फ्लो होउतिला एंड रिवर्स बायस रे देयर इज नो करंट दैट मींस एटी फॉरवर्ड बायस रे करंट फ्लो होउछ माने तार रेजिस्टेंस अछि ता कोनते फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस RF ए जो सर्किट डायोड पाखे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होउची फॉरवर्ड बायस रे सेटा नेग्लिजिबल रहइबो करंट पास करूची सो दैट एटी रेजिस्टेंस डे कम रहइबो बट ए रेजिस्टेंस को कोनती RF okay and here is a resistance RL this is load resistance and this is RF तो इनपुट सर्किट रे दि जन का रेजिस्टेंस रहइबो RF और RL बट आउटपुट रे केवल रेजिस्टेंस लोड रहउतला काहे सेठी केवल लोड ही ड्रॉप करतला तले एठी कहू दीटा सर्किट काम करिवे दीटा रेजिस्टेंस काम करिवो RL काम करिवो as well as RF काम करिवो so you can write the net resistance that is RF plus RL बुझौची आउटपुट पाई केवल RL इनपुट पाई RF plus RL ओके क्लियर RF माने कोन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस RF माने कोन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस RL माने कोन लोड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस लिखि दे परिबो RF RL फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एडा होची लोड रेजिस्टेंस लिखि दे परिबो ओके so we can find the power RMS PRMS केते होची पे देखिबा PRMS केते ना IR स्क्वायर IRMS रो स्क्वायर इनटू RF प्लस RL अरे हो कि नहीं because I square R here I square R so PRMS equal to IRMS square into RF plus RL so that by using this value I naught by 2 that means maximum value of current by 2 that is square into RF plus RL clear so here I naught square by 4 into RF plus RL okay so finally PRMS kete barla that is output power we can write this is PRMS or this is output sorry this is input this is what this is input
PRMS केते होला I square by 4 I naught square by 4 into RF plus RL. Here input केते होला I naught square by pi square into RL. वर्तमान पिले एफिशिएंसी को आसीबा कोन आसीबा एफिशिएंसी इरेज करूची जहार भी नोट्स तो काट दिबो से माने पॉज करके वीडियो को लिखि परिबे ओके ताले वर्तमान देखो पिले हम एफिशिएंसी बाहर करिबा अरे एफिशिएंसी माने कोन बहुत सारे एफिशिएंसी तुम पढ़ी के आछो कार्बोनेट इंजन एफिशिएंसी पढ़िछो आगु बहुत सारे एफिशिएंसी पढ़िछो एफिशिएंसी वर्ड आसीला माने कोन करिवो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कोन करिवो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट सो हियर एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मैं लिखुनी बिकॉज़ हाफ वेव रेक्टिफायर ही हम चले छे एफिशिएंसी that is neta or eta that is eta we can write the formula eta for kono output power PDC that is output or DC output na here PDC divided by P RMS or we can say AC रो में RMS का सिवा AC ता जगह पकेगा RMS हो इनपुट रोज किए हमरा इनपुट एटा आउट डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर एंड एसी इनपुट पावर रे कम पड़िबो पिले देखो हियर वी कैन राइट इटा इक्वल टू एंड आउटपुट पाइम पकेबा I naught रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनटू RL होल डिवाइडेड बाय I naught रो स्क्वायर बाय 4 into RA plus RL. Clear? Here I naught गला कटी बाकी रहिला RL by pi square and here 4 is divided by 2 ऊपर पड़ेगा 4 by RF plus RL. So by arrangement this equation 4 by pi square अब RL divided by RF plus RL. Clear? So इटा केते भला 4 by pi square into RL by RF plus RL. This is efficiency. याको हम efficiency कही पारिबा जदी याको आउट के अरेंजमेंट कर दबा कोन हो पिले देखो so here eta equal to if here RL मु कोन करी एठी गोटा RL डिवाइड करी एठी गोटा RL डिवाइड करी एठी गोटा RL डिवाइड करबी एठी गोटा RL डिवाइड करबी न्यूमरेटर रे गोटा RL डिवाइड करबी डिनोमिनेटर रे गोटा RL डिवाइड करबी कोन बारिबो पिले 4 pi स्क्वायर 4 by pi स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय RL 1 RF डिवाइडेड बाय RL RF by RL प्लस RL by RL 1 अरे ऊपर डिवाइड कर तळे डिवाइड कर हिला नाही so here this is the efficiency for half wave rectifier. This is efficiency for half wave rectifier. जदि मु गोटे आइडियल रेक्टिफायर ने भी आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर ने भी नेक्स्ट पॉइंट पे लिखि परिबो इट लिखि दोछि मु एठी हाफ वन पॉइंट एटा होछि रेक्टिफायर को रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर इन केस ऑफ फॉर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर for ideal half wave रेक्टिफायर आइडियल रेक्टिफायर अच्छा रेक्टिफायर काम आइडियल हे गेले कोन करबो से काम को दूर करबो दूर करबो माने रेक्टिफायर जो वर्क करूथला से ताको प्रॉपर वे रे करबो आइडियल लागि जाय छिला आइडियल लागि जाय माने पूरा बिंदास रे करबो ओके सो आइडियल रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी इन प्रॉपर वे करबो माने कोन दैट मींस तार फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हियर फॉरवर्ड डिस्टेंस बहुत छोट होई यदि पूरा कमी गला फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मन बका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कोथिला डायोड इट लागितला इट लोड रेजिस्टेंस थिला ए डायोड लागितला इट लोड रेजिस्टेंस थिला डायोड रे यदि रेजिस्टेंस पूरा कमी जो मैक्सिमम अमाउंट रो करंट पास करिवो एंड मैक्सिमम अमाउंट रो करंट पास कला हम स्मॉल अमाउंट रो डीसी करंट पाइबा बुझौची सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड आइडियल रेक्टिफायर RF is very less than RL. RF is very less than RL. So जदि हमें RF को RL ले डिवाइड करिबा
सो Rf by RL केते बाहरिबो 10 to 0 approximately 0 हो 0 पॉइंट बहुत सारा 0 पॉइंट बहुत सारा 0 माने कଣ ये बहुत छोटो हे गेला देखो Rf टा बहुत छोटो एटा बहुत बड़ डिवाइड करले 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट बाहरिबो 0 पॉइंट बहुत सारा 0 पुनी 1 बाहरथिबो 0.1 सॉरी 0.1 फॉर एग्जांपल so this magnitude Rf by RL approximately 0 रहबो जदी पले एठी 0 बस पइला कोन हो ए जे 0 बस पइला कोन हो देखो here 0 1 by 0 plus 1 1 by 1 here cancel out so 4 by pi square tale for ideal rectifier efficiency of rectifier is 4 by pi square efficiency of rectifier is 4 by pi square which is approximately equal to 0.404 डिवाइड करो पाई रो वैल्यू पके दो 22/7 देन तार स्क्वायर कर दो डिवाइड करियो भाई केते 0.404 अप्रोक्सीमेटली तार एफिशिएंसी रहबो एति की केते रहला 0.404 क्लियर दिस इज एफिशिएंसी फॉर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर we calculate this efficiency by percentage efficiency percentage 100 मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज कैलकुलेशन कर 40.4% सो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी केते बारिबो 40.4 बारिबो क्लियर दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर वर्तमान रिपल फैक्टर बार करिबा ओके वर्तमान मन रखिता हमें सेम सिचुएशन फुल वेव पे करिबा ओके इरेज करी वर्तमान हम पढिबा रिपल फैक्टर एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढिले जोटा कि थिला पावर डीसी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसी पावर इनपुट आउटपुट बाय इनपुट रे भारिबो तमरो कोन ना गोटे रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी भारिबो ये हमर वर्तमान रिपल फैक्टर एफिशिएंसी बाहर हम ता विषय किछि डिस्कशन करबा रिपल फैक्टर कोन ना गोटे जो रेक्टिफायर एसी को डीसी रे कन्वर्ट करूची तार एबिलिटी केते अमाउंट रो से एसी को डीसी रे कन्वर्ट कर परिबो से रिपल फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो तो व्हाट इज रिपल फैक्टर वी कैन राइट द एबिलिटी ऑफ a rectifier to convert AC to DC depends upon the measurement of ripple factor depends upon the measurement of ripple फैक्टर सो जो ए रिपल फैक्टर ऊपर डिपेंड करबा जे केते अमाउंट रो गोटे एसी डीसी रे कन्वर्ट होछ सो दैट हमें रिपल फैक्टर केते बाहर करिबा एंड मैथमेटिकली वी कैन से रिपल फैक्टर रो सिंबल होछि गामा एंड मैथमेटिकली वी कैन से रिपल फैक्टर इज इक्वल टू द value of or magnitude of ISC divided by value of IDC अरे DC टा AC को होच कन्वर्ट हो AC टा DC रे कन्वर्ट होची सो value of ISC divided by value of IDC the magnitude of AC current divided by magnitude of direct current सो वर्तमान हमें जो AC करंट और DC करंट रो वैल्यू पाइबा that means we can write IAC divided by IDC वर्तमान हमें IAC बाहर करिबा एंड IDC से डिवाइड करिबा देखिबा रिपल फैक्टर केते बारछ ओके देखो already we know that
see we know that IRMS equal to root over IDC रो स्क्वायर प्लस ISC रो स्क्वायर पिले एटा केमिति हला मुडी लिखि देली ऑलरेडी वी नो दैट बट हमें जानि छे बट हमें केही जानि कोन जाने IRMS रो स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर IDC रो स्क्वायर प्लस ISC रो स्क्वायर पिले एटा केमिति हला ना देखो जो IRMS हमें कहिले सेटा कोन द मैग्नीट्यूड ऑफ पल्सेटिंग DC रे कियो अछि DC अछि as well as AC अछि एंड DC अछि AC अछि काहा जगु से पल्सेटिंग DC जो क्रिएट हैला सेटा केमति बाहरियो पले देखो सपोज हम एपन नै जिबा हियर सपोज IDC एंड हियर सपोज ISC एंड हियर आसीबो IRMS कोन आसीबो IRMS एंड जदि एटा ISC हैला हियर ISC होगी नहीं तले IDC ISC IRMS केम धारिबो IDC रो स्क्वायर प्लस ISC रो स्क्वायर तारा रूट जानि होची पिले पाइथागोरस ट्रिपल पके परिबो थ्योरम पके परिबो सो IRMS ला IDC रो स्क्वायर प्लस ISC रो स्क्वायर एंड हियर वी कैन राइट IRMS रो स्क्वायर इक्वल टू केते बारिबो ना IDC रो स्क्वायर प्लस ISC रो स्क्वायर ताले एथुर हम ISC बाहर करिया बिकॉज़ हमर ISC दरकार है ताले ISC केते होबो ISC द स्क्वायर इक्वल टू बाहरिबो IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर एंड ISC केते बाहरिबो रूट ओवर स्क्वायर के से गले कम होबो रूट ओवर हे जिवो रूट अंडर IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर क्लियर हमें वर्तमान ISC पाई गले वर्तमान नै कि हम रिपल फैक्टर पे पके पाए बोलो रिपल फैक्टर पे पके पाए ISC जगह तक सो नाउ गामा इक्वल टू बारजी केते ना ISC इक्वल टू पके परिबा IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर the root over divided by IDC कितना वाला IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर root over divided by IDC and here we can write root over of IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर divided by IDC रो स्क्वायर रो root over हे परिबो होबनी बिकॉज़ इट इज सिंपल अछि स्क्वायर कर देली रूट ओवर कर देली स्क्वायर रूट ओवर उठले सही IDC रहइबो सो IDC रो स्क्वायर रो रूट ओवर कर देले वर्तमान आकु डिवाइड करबा देखो दी जण जाक रूट ओवर अछंती कोन अछंती दी जण जाक रूट ओवर अछंती ताले हमें कोन करबा देखो नेक्स्ट स्टेप देखो पिले देखो ताले हमें लिखि परिबा नेक्स्ट पॉइंट होल रूट ओवर ऑफ IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC रो स्क्वायर by this minus this by this so IRMS divided by IDC तो दी जनकर स्क्वायर minus IDC square divided by IDC square 1 by comparing this we get gamma equal to eta square divided by eta square माने IRMS divided by IDC the whole square minus 1 रो रूट ओवर एटा होची रिपल फैक्टर रो फार्मूला दिले एटा केते रिपल फैक्टर रो फार्मूला परता रिपल फैक्टर केते हो जे बाहर करियो देखिया त वैल्यू केते बाहर होची हमें ऑलरेडी IRMS एंड IDC जानि छे कहा पई हाफ वेव रेक्टिफायर पे हमें ऑलरेडी जानि छे लेखि दउथबो नॉर्मली इरेज हो जाउची हमें ऑलरेडी जानि छे IRMS एंड IDC रो वैल्यू जानि छे कोन जानि छे पहिले देखिबा देखो IRMS होची I0/2 divided by IDC होची I0 divided by pi तार स्क्वायर -1 the root over here हे जाउची I0 रो स्क्वायर by 4 and whole divided by I0 रो स्क्वायर by pi square बुझी होची क्लियर मिले r square by r square -1 रो रूट ओवर
and here I not cancel, so pi square ऊपर जो तले रहेगा 4 pi square by 4 by pi square दे no हाँ ठीक है pi square by 4 minus 1 द root over and आपको यदि पिले तमे कैलकुलेशन करबो आर वैल्यू बाहरबा approximately 1.21 ले बुझी पारुछो केते बाहरबो 1.21 यदि परसेंटेज रे पिले बाहर करबा नाउ गामा परसेंटेज केते बाहरबो ना 1.21 into 100 that is 121 percentage 121 percentage. This is ripple factor for half wave rectifier. Okay. बर्तमान फुल वेव रेक्टिफायर पे करिबा एटा तुम चाहिले भी निजे करि परिबो फुल वेव रेक्टिफायर पई मु खाली केवल आईडीसी जदी आईडीसी एंड आईआरएमएस रो पीक वैल्यू सहित रिलेशन बाहर कर देली एंड रिलेशन लिखि देली तुम ऑटोमेटिक ए सब तक रिपल फैक्टर बाहर करि पारिबो बुझो जे सेम वे जो वे रे बाहर करे सेम और तुम बाहर कर पाइबो इजी वे देखो बर्तमान फुल वेव पे बाहर करिबा फॉर फुल वेव रेक्टिफायर अरे पहले फुल वेव रेक्टिफायर पाई आईडीसी केते ना आर आईडीसी बाहरिबो 2y0 बाय पाई क्लियर आर आईडीसी हो जे 2y0 बाय पाई एंड देन मु डायरेक्ट लिखुची आईआरएमएस बाहरिबो केते ना i0 बाय √2 तार दिला i0 बाय पाई आर बाहरिबो 2y0 बाय पाई एसी करंट चैप्टर पढिबो एटा एंड हियर आरएमएस बाहरिबो i0 बाय √2 केते बाहरिबो i0 by √2 RMS value peak value by √2 वर्तमान यदि मु भाई आकर लिखिबी कोन एफिशिएंसी हबो कोन शॉर्ट रे बात करछ एफिशिएंसी बिकॉज़ हम सेटा ऑलरेडी डेरिवेशन करिजे शॉर्ट रे तमे चाहे लिजे डेरिवेशन करि परिबो पीडीसी बाय शॉर्ट रे लिखु जेटा आउटपुट रहइबो पीएससी i स्क्वायर i डीसी रो स्क्वायर इनटू आरएल इट रहइबो i RMS रो स्क्वायर इनटू RF प्लस RL या तो करथिले ना सो समस्त वैल्यू पुट कर दबा देखो बर्तन IDC पुट करले बाहरिबो 2i0 बाय पाई रो स्क्वायर 2i0 बाय पाई स्क्वायर डायरेक्ट कहूची 2 रो स्क्वायर 4 i0 रो स्क्वायर बाय पाई रो स्क्वायर इनटू RL होल डिवाइडेड बाय i0 बाय √2 रो स्क्वायर मींस i0 रो स्क्वायर √2 रो स्क्वायर 2 into RF plus RL cancel then 4 by pi square into 2 पळेबो into 2 into RL divided by here ऊपर अछि तळु पळे सो RF plus RL clear 2 into 4 फाइनली केते बारला इटा केते बारला ना 8 by pi square here pi square here 8 by pi square RL by RF plus RL बट सेठी केते बारला पिले 4 by pi square एठी बारला 8 by pi square बुझोची किछि नै पिले सेटा हाफ आकार थिला ए टाइप रो थिला हाफ आकार थिला से जहां बातला एता डबल भारी कम भारी डबल भारी निश्चित डबल भारी ऑब्वियसली सो डी 8 4 थिला हमें 2 मल्टीप्लाई कर 8 भारी पड़लो एंड आपको जदी हमें आइडियल ले जिबा फॉर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर लेखि परिबो संति RF very less than RL then RF by RL tends to 0 लेखि परिबो तमे RF by RL ओ एठी हम करिने नेक्स्ट पॉइंट भी तमे एठी करि परिबो ठीक जदी ताको चेंज करबो चाहछो एठी RL डिवाइड करिवो एठी RL डिवाइड करिवो सो फाइनली केते बारिबो ना फाइनल बारिबो 8 by pi square and here 1 by RF by RL plus 1 ऑलरेडी एठी भी करिছে सेतरी भी करिছে अपर स्टेप ता तमे बाइक करि परिबो अपर स्टेप ता RL डिवाइड 1 RF by RL plus 1 and here जदी हमें pi square वैल्यू पुट करिबा and here is 0 गले 8 by pi square बारिबो ताले इटा बारिबो 8 by pi square and approximately value रहेगा 0.808 सेठी बातला 0.404 into 2 0.404 into 2 बाहर परिबो फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी एंड परसेंटेज जदी बाहर करियो चाहौ ताले पिले बारिबो हमरो 80.8%
रिपील फैक्टर बाहर करिया बुझेला बेले ये सरला तमरो फुल वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी बाहर करला बर्तमान रिपील फैक्टर भी सेम वे रे बाहर करिवो किछि दिक्कत नै किछि असुविधा नै जो वे रे हम ऑलरेडी बाहर करि छै से वे रे बाहर करिबा कोन बाहर होतले देखिबा आ एते सारा लिखिया दरकार नै तुम लिखि परिबो रिपील फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर बर्तमान फुल वेव बाहर करछे सो रिपील फैक्टर कोन रहबो बेले I AC divided by DC ISC IS कितना रहेगा IS कितना रहेगा को 0 को IS कितना रहेगा IS रहेगा IRMS रो स्क्वायर माइनस IDC रो स्क्वायर रो रूट ओवर डिवाइड बाय IDC रो स्क्वायर सो डायरेक्ट ता फार्मूला पुट करू IDC रहेगा IDC रो स्क्वायर रूट ओवर कर दो एंड डायरेक्ट फार्मूला कला लास्ट फाइनली फार्मूला को मात्रा चेक कर दो जाय कि डायरेक्ट लिखुची डायरेक्ट बातला IRMS डिवाइडेड बाय IDC द होल स्क्वायर माइनस 1 लास्ट पॉइंट लास्ट ये जो डेरिवेशन करके लास्ट को ये फार्मूला पाउथले IRMS बाय IDC द स्क्वायर माइनस 1 नो रूट ओवर सो जो रूट ओवर बातला सेठी RMS एंड IDC हाफ वेव रे पड़थिला IRMS IDC हाफ वेव बेले हाफ वेव रे पड़थिला फुल वेव रे पकेले बिले को मारियो नेक्स्ट पॉइंट IRMS तमे जानि छे I नॉट बाय √2 IDC केते 2 I नॉट बाय pi so here this is the square and the minus 1 the root over and we find the value I naught square over I naught square by root square 2 whole divided by 2 square 4 I naught square by pi square and minus 1 and here I naught cross square cancel and get 1 by 2 here pi square upru jibo and 4 तळକୁ ଆସିବ so pi square by 8 minus 1 क्लियर बुझी होची अरे 4 by pi square अछि pi square upru गला तळ गला 4 आतळ अछि 8 4 into 2 8 pi square by 8 बुझिला तो पिले अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बारिवार 0.481 पाखापाखि बारिबो केते बारिबो 0.481 पाखापाखि बारिबो एंड जदि हम रिपील फैक्टर रो परसेंटेज बाहर करिबा सो परसेंटेज नेक्स्ट पॉइंट लिख परिबो गामा परसेंटेज इक्वल टू 0.481 into 100 that is 48.1% केते बारिबो 48.1% approximately तार रिपील फैक्टर बारिबो फुल वेव रेक्टिफायर ओके सो डियर स्टूडेंट तमे रिपील फैक्टर आउ एफिशिएंसी दी जण पय हमें पढिले आइडियल रेक्टिफायर पय कोन हो रिपील फैक्टर आउ तार एफिशिएंसी एंड फुल वेव रेक्टिफायर पय भी कोन हो हम ऑलरेडी पढिले वर्तमान एठी माइंड को आछि पिले हमर एफिशिएंसी आउ रिपील फैक्टर पिले कोन खाली कांसेप्ट टिके बुझि जे हम रखिबा लास्ट सेक्शन ओवर करिबा सो पिले देखो एफिशिएंसी कोन बेले बेले सुनिथिबो जे ए डिवाइस रो एफिशिएंसी भलो एफिशिएंसी मींस ओडिया रे कहया गेले कार्य दक्षता को डिवाइस केते कार्य दक्षता प्रोवाइड कर परछि दैट इज एफिशिएंसी जहार एफिशिएंसी जेते अधिक तार आउटपुट सेते भलो बाहरिबो सो हाफ वेव रे हमर एफिशिएंसी बाहरिला केते पिले बाहरिला 40.4% and 80.8% बाहरिला फुल वेव so that full wave efficiency percent अधिक रहउची rather than half wave so full wave rectifier is better than that of half wave because it gives continuous DC percentage okay and repeal factor पिले देखिबा ठीक efficiency बुझि पाइला जार efficiency ते भलो रहइबो से सेते यूजफुल सेते तापे हम पय बहुत सिग्निफिकेंट हम पय बहुत भलो and repeal factor half wave पय बाहर पिले केते 121% and आप पय केते वाला 48.1% ता अर्थ पिले को जानि छ रिपील फैक्टर जहार जते कमिबो से डिवाइस से भलो हाफ वेव रो फुल वेव रो कमउची यार बढ़ुची कोन पय चेक कर दबा गोटे देखिबा देखो हमें जानले गामा इक्वल टू ISC बाय IDC सो ISC इक्वल टू IDC into गामा हो कि नहीं IDC into गामा और it is ISC रहउची it is 121%
माने डीसी रो 121% होची एसी ता अर्थ हमें जो यूज करू से रेक्टिफायर कोन पे डीसी पाया पे तो किंतु एसी बढ़ी जाउनी एसी एटी अधिक हो जाउची डीसी वेरिएबल हो तो अधिक हो जाउची केम देखो AC equal to 121% of DC AC equal to 121% of DC देखो into gamma into रिपील फैक्टर 121% of DC so that एटी AC रो अमाउंट बढ़ी जाउची DC हमें बेसी पाइबानी हम पई बेसी यूजफुल होबनी एटा तो कमी जाउची 48% of DC DC रो 48% होची AC ता माने कोन 50% भी नुह DC जति की बाहरुची AC रा तार 50% भी नुह 48% एठी जति की DC बाहरुची तार 100% रु आहुरी अधिक हो जाउची AC to 121% हो जाउची AC so that eta बेसी यूजफुल नुह हापय बिकॉज़ तार रिपील फैक्टर रोचे हाई एंड तार एफिशिएंसी रोचे लो and in case of full wave rectifier there is a more efficiency and less ripple factor so it is very useful for us okay dear student understand and this section is over and thank you all of you